Namaskar. We are here, three of us, uh, Shiva, Aslam, Bini Yadav. Three of us are here to speak to you about a new uh, digital news and views property. We can call it website. Digital property is more accurate because we are going to be in the social media. We are going to be in YouTube. We are going to be to be having a website. So we planned this website because we thought this is the right time to start digital journalism as it is getting into a new level in India and across the world. Digital journalism does not uh, warrant heavy investments or big industrial houses. Any professional journalist can actually initiate it with the help of the digital equipment which are freely available these days. So we are looking at that. One of the reason is that three of us have been in the media or associated with media for years, and we know the limitations of the conventional media. So we want to break that and practice what we all believed in when we start our journalistic practice, which is ethical journalism. And that is what we are trying to do. And in the process, we are also looking at making a niche for ourselves by not doing the same thing which others are doing. We are trying to look at things which others have, I won't say chosen, but looked over the years. Because India is a country of 1.3 to 1.4 billion people, and majority of the people are in the countryside and in the villages. And it so happened that our present media is focused on the urban centers and some other towns. Of course, they go to the villages and the semi-urban places for when something really bad happens. So we want to, but there is life and people in those areas. We want to focus on them, which are and since they form the majority of the population, and we uh, we are committed to issues of those people, the majority of the people. We want, you can call them and segregate them in terms of caste, in terms of economy, and even in terms of population. But we feel that they form the mass of the people in India, and also as a democratic republic, their uh, news or their life needs to be reported and put before the mainline media as well as the decision makers. That's what we are attempting to with our digital property. Now, I have two colleagues of mine. They will also explain their vision of the digital journalism which we want to practice. Let me start with Shiva. Shiva, please. थैंक यू वेरी मच चरियन साहब। और हम सबको और हमारे दर्शकों को ये बहुत बहुत मुबारक हो जो हम आज नई कोशिश करने जा रहे हैं। हम सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो। भारत बहुत बड़ा देश है, जैसा अभी चरियन साहब ने कहा, लेकिन सब कुछ सियासत में नहीं होता है, सब कुछ राजनीति में नहीं होता है। इतने बड़े देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में घटती हैं, और घटते-घटते वो इतनी कॉमन सेंस बन जाती हैं, इतनी कॉमन प्लेस हो जाती हैं कि फिर वो सियासत में भी चली जाती हैं। और ऐसे बहुत से पहलू हैं समाज में जो हो रहे हैं, जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, जिन पर हमें बात करनी चाहिए, जिनके सही-गलत पे बात करनी चाहिए, और समाज को देखना चाहिए कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है। तो हमारी सबकी कोशिश ये है कि जब हम ग्रास रूट लेवल्स पे काम करेंगे तो यही करेंगे कि जो नई प्रवृत्तियां हैं समाज में, जो नए तौर तरीके हैं समाज में, और जो नई प्रक्रियाएं आई हैं उन पर हम बात करें और ये समझें कि ये हमें किस तरफ लेके जा रही हैं। तो ग्रास रूट्स का काम यही होगा इस नए मीडिया प्लेटफॉर्म का, कि हम अपने देश को बेहतर समझें और देश में क्या चल रहा है उसको बेहतर समझें। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उस जर्नलिज्म पर काम करेंगे जो इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों द्वारा जिसकी उम्मीद वो लोग सब करते हैं, और जो बहुत
कुछ अनरिकॉर्डेड रह जाता है, जिसको हम कहीं दर्ज नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश यही है, और इस मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का जो हिंदी संस्करण है, उसका नाम है माटी माजरा, यानी कि हमारी मिट्टी से जुड़े हुए माजरे, या जो चल रहे हैं, जो मसले चल रहे हैं, या जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, तो वो माटी माजरा उसको कवर करेगा ग्रास रूट लेवल पर, और उस पर चिंतन भी होगा, उस पर विश्लेषण भी होगा। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि हमारे समाज के अंदर से जो कुछ भी हमें आ रहा है, जो कालांतर में आगे जा करके हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी राजनीति को प्रभावित करता है और मुद्दे बनाता है, हम उस पर बात करें। तो बहुत शुक्रिया चेरियन साहब, एंड बिनी यादव जी हमारे साथ हैं। बिनी भी इससे उसी तरह जुड़ी हुई हैं। ओवर टू बिनी नाउ, थैंक यू। शुक्रिया शिवा, शुक्रिया चेरियन साहब, और दर्शकों आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस हमारे नए प्लेटफॉर्म, जिसका नाम जैसे कि शिवा जी ने कहा, रूट्स माटी माजरा। और इसमें हमने, जैसा कि चेरियन साहब ने और शिवा जी ने कहा, कि हम जमीनी स्तर पे जो हमारे मुद्दे हैं, जो उन पे हम बात करेंगे, और जो हमारी मीडिया, जो रेगुलर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हम टेलीविजन मीडिया में जब हम एथिक्स की बात करते हैं, वो अगर हमें लगता है कि एक ऑल्टरनेट हम दे पाए यहाँ पर, रूट्स पे, ग्राउंड पे जो हमारी समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम क्यों कर रहे हैं इसको, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। तो उसमें उसके बाद एक और सवाल ये आता है कि देश क्या है और देश कैसे बनता है। तो जब हम इन बातों पे बात करते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ एक सवाल, इस सवाल का सिर्फ एक जवाब आता है कि देश नागरिकों से बनता है, हमारी पॉपुलेशन से बनता है। और इसीलिए जो सबसे बड़ी संपदा है किसी भी देश के लिए, वो उसके नागरिक हैं, उसकी पॉपुलेशन है, उसकी जनता है। तो सारा दारोमदार हमारे किसी भी देश के बनने का, देश के स्ट्रक्चर का, उसका और कोई नहीं है। सबसे बड़ी जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके नागरिक हैं और जनता है। और जब हम एथिक्स की बात करते हैं, मीडिया में एथिक्स की और कवरेज की और ग्राउंड पे जाकर मसलों को सामने लाकर आने की बात करते हैं, तो जब तक हम जनता की, वहाँ के पॉपुलेशन की, सिटीजन्स की बात नहीं करेंगे, तो किसी भी एथिक्स को हम फॉलो करें या ना करें, कोई मायने नहीं रखता। और जब पॉपुलेशन की बात आती है, तो पॉपुलेशन में भी वो पॉपुलेशन जो मार्जिनलाइज्ड है, जो किनारे पे चली गई है, उसके बारे में हमें बात करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि हमें एक बेस लेवल पर डेवलपमेंट लेके आना है। यही किसी भी देश का, किसी भी देश की राजनीति का, वहाँ के गवर्नेंस का अल्टीमेट मकसद यही है कि हम विकास में आगे बढ़ते चले जाएं। और जो कुछ पीछे छूट रहा है, जो लोग पीछे छूट रहे हैं उस विकास में, तो हमारा केंद्र उनकी तरफ ज्यादा हो और उन्हीं के बारे में ज्यादा बात करी जाए। तो यही कारण है कि हम वो पॉपुलेशन, वो नागरिक, वो जनता जो इस देश को बनाते हैं, उसमें वो पॉपुलेशन, वो परसेंटेज, वो प्रतिशत जो कहीं ना कहीं इस विकास की दर में, विकास में के कोशिश में, चाहे सरकार हो, चाहे सिविल सोसाइटीज हो, वो पीछे छूट गए हैं। उनके बारे में बात क्यों ना करी जाए? तो यहाँ पर हम रूट्स माटी माजरा में जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारी कोशिश है कि हम उसी परसेंटेज, उसी पॉपुलेशन की परसेंटेज की बात करें जो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए हैं। और इस कोशिश में हमारे साथ साथ आप भी हमारे जुड़ें, और आपके सुझाव, आपका रिएक्शन, आपके जो भी इसमें हमें सुझाव मिलेंगे, हमें हौसला देंगे कि हम इस पे और मजबूती से, ईमानदारी से काम करें। चेरियन, शिवा, इस पे आप क्या कहना Yes, चाहेंगे? yes. Thank you, Binny. Sorry, I am born in South India, so my Hindi is not so good, though I am in Delhi for last 40 years. So I will speak in English mostly. But I totally agree with Binny that the what the people makes the country. So we need to focus on the issues of the people. It so happened that we keep hearing about the caste, the community, everything, but that
all of them have their own problems, social, personal, political, all problems. And we are planning to focus on those things with Roots Mati Majra. And why we adopted this name is to show that what we aim with this digital property. We don't want to be caught in the day-to-day politics of running the politics or administration, which I'm sure the regular media is taking care. But we want to look at what is happening in the ground. What is the issues with people? There are the mainline media goes to the countryside when there is a tragedy or something major happens. But there are people. They are living there and they have their daily issues. So our focus is to get to those issues and put it before all of you, so that not only the government and administration, but people in general get sensitized to what is happening to the majority of the population around us. Shiva. जी, मेरा हमेशा से ये मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर के कोई हमारे पास पिछला इतिहास नहीं था, लेकिन हमने एक नए राष्ट्र के तौर पे ये तय किया था कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर यकीन रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी वो किताब होगी जो हमें दिशा देगी। तो ऐसे समाज में सामाजिक तौर पे ये मेहनत ज्यादा नहीं की गई कि हम सब में जनता के तौर पे ये जो मूल्य हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये हमारे मिजाज का हिस्सा बने, हम इनके दायरे के अंदर सोचना शुरू करें। तो अक्सर ये होता है कि कानून बन जाते हैं। अभी आपने देखा कि एक कानून बन गया जो ट्रक ड्राइवर्स ने जिसका विरोध किया और फिर समझ में ये आया कि ये कानून कितना खतरनाक है कुछ लोगों के लिए खासकर, लेकिन तकरीबन सभी के लिए, क्योंकि आजकल हम सब लोग ड्राइवर भी हैं, हम सब गाड़ियां चलाते हैं। तो उससे पहले जो समाज में तैयारी करनी चाहिए थी कि समाज ऐसा बने जो नियमों का पालन करे, जो ट्रैफिक रूल्स का पालन करे, इसलिए नहीं कि कोई पुलिस वाला वहां खड़ा है या नहीं, बल्कि इसलिए कि ये सबके हित में है। तो ये जो बैकग्राउंड प्रिपरेशन होता है कि किसी अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए, वो समाज में हो नहीं पाया उस तरह से। तो कोशिश ये है कि हम अपने समाज पर बात करें, समाज को समझें और क्या बेहतर करना है उस पर बात करें। तो बहरहाल पावर इक्वेशन हर जगह है और जब पावर इक्वेशन है तो उसमें राजनीति भी होती है, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन हर चीज को हम मेन स्ट्रीम में जब हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सियासत की नजर से, पार्टी पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की नजर से और गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडीज की नजर से नहीं, हम उसके अलावा भी बात करें। तो मेरा जो जोर है इस माटी माजरा के पूरे उपक्रम में वो ये है कि हम अपने समाज को बेहतर समझें और बेहतर बनाएं, और उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें हमारे रीति रिवाज शामिल है, उसमें हमारे पुरानी परंपराएं शामिल है, उसमें हमारे धार्मिक मान्यताएं शामिल हैं, उसमें हमारे जो आज नए भारत के लिए जो जरूरी तर्कवाद है, रैशनलिज्म है और विज्ञान है, वो हमारी सोसाइटी में किस तरह से अंदर पहुंच पा रहा है, उस पर हम बात करें। और जाहिर है कानून व्यवस्था और जो सियासत है उस पर तो हम बात करेंगे, वो तो हर जगह से आ ही जाता है। तो यही कोशिश है कि समाज में जो कुछ चल रहा है उस पर गहरी निगाह रखी जाए, पैनी निगाह रखी जाए, जो सबको प्रभावित करता है। और माटी माजरा का काम यही रहेगा, हम कृषि से लेकर के मजदूर वर्ग से लेकर के ब्लू कॉलर जो वर्कफोर्स है हमारी, उनसे, और फिर व्हाइट कॉलर और जो नए इलाके बन रहे हैं, नए समाज बन रहे हैं, चाहे वो मेट्रो सिटीज के हों और या सेकंड रंग सिटीज के हों, उन पर बात करें। नए प्रोसेसेस क्या है समाज में, उन पर बात करें। तो आप सब लोगों के लिए एक आह्वान ये है कि जो मुद्दे आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आप उन्हें चिन्हित करिए, हमारे लिए हमें बताइए कि क्या हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। ये भी बताइए कि जो नए तरह से कानून वगैरह बन रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्रास रूट लेवल्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी बताइए। और हमें लगातार हमारी जो डगर है, जो हमारी राह है कि हम समाज के ऊपर बात करें, उस पर हमें बिल्कुल मुस्तैद बनाए रखने में हमारी मदद करिए। आप हम दर्शक ही हमारे निगरान हैं, जो हमारी निगरानी भी करेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है।
और जो जहाँ से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप देश के किसी भी कोने में हो, सबके पास आज वो मोबाइल है कि आप कोई घटना घट रही है, कोई प्रोसेस है, कोई अच्छी बात है, तो उसको रिकॉर्ड करें, हमें भी भेजें, जिससे कि हम अपने लोगों को फिर वहाँ भेज सकें, या अगर वो आपकी इजाज़त हो तो हम उस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकें आपके नाम के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक इंटरैक्टिव और एक ज़्यादा घुलने-मिलने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने की हमारी मंशा है, और आप सब लोगों के सहयोग के बिना ये नहीं होगा, तो आप सब लोग भी सहयोग कीजिए। जी चेरियन साहब। Okay, that's very important, Vinny. One minute. That we want the participation of the viewers, especially from the countryside, whom we are trying to address. And of course, we have informally have networks which are working in the ground, whether it is community groups, whether it is NGO groups. We are tied up with them now. It's up to you people who are on the countryside and living the life which you are doing, to give us the feedback, give us the information, give us the leads, so that we can be fruitful. Vinny, please. मैं भी शीबा की बात से पूरी तरीके से वास्ता रखती हूँ, और हमें जर्नलिज्म में हमेशा बताया जाता था कि वी आर द वॉच डॉग्स, लेकिन डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के आने के बाद एक सिटीजन जर्नलिज्म बहुत प्रोमिनेंट तरीके से सामने आया है, और जो हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है और एक टूल है, मैं वेपन नहीं कहूँगी, एक टूल है। हमारा मोबाइल हर वक्त हमारे साथ होता है, और एक डिजिटल मीडिया का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, वहाँ पर हर नागरिक, हर सिटीजन एक वॉचडॉग है आज। तो उस तरीके से जो हमें एक ताकत मिली है डिजिटल मीडिया के ज़रिए, हमें उस ताकत के साथ जुड़ना है। यही हमारा मकसद है कि हम सिटीजन्स को, नागरिकों को अपने साथ जोड़ें, और आप हमें बताएँ, हमें दिशा दें। हमारे पास विज़न है, लेकिन जो दिशा है वो डेफ़िनेटली वहाँ से मिलेगी जो लोग किसी समस्या से, किसी जो रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं उनसे 2-4 होते हैं। तो हम एक डिजिटल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करके, और जो सिटीज़न जर्नलिज़्म कहें, उसे सिटीज़न वॉचडॉग की तरह हम शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, और एक हाथ से हाथ मिलाकर हम मुद्दों को लेकर मुद्दों पे बात करें, चर्चा करें, उनको सामने लेकर आएँ। हो सकता है कि मेरा मुद्दा मेरे तक रहे, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए कोशिश ये है कि वो सब तक पहुँचे, उन पे चर्चा हो, और कल पॉलिसी मेकिंग में भी वो काम आए। क्योंकि जब हम मीडिया के रोल की बात करते हैं, तो व्यापक रोल मीडिया का क्या है? ठीक है, हम वॉचडॉग हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, डिजिटल मीडिया में एक नए तरीके से हमारा रोल निकल के आया है। तो जब एक नॉर्मल हम देखते थे कि हमारे पास ट्रेडिशनल मीडिया रहा है, जो अखबार है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से काम करता आया, उसके बाद टेलीविज़न और ब्रॉडकास्टिंग मीडियम हमारे पास रहे। उसके बाद जो अब जिस हम दौर में रह रहे हैं, डिजिटल मीडिया ने उसने सारी कनेक्टिविटी की, सारी डेडलाइन की, वो सारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दिया है। तो एक तरीके से एक पॉज़िटिव टूल की तरह हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं जो स्पेस स्क्वीज़ हो गई है, जो टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में न्यूज़ की, खबरों की और मुद्दों की जो एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, वहाँ पर मुद्दों की बात सिकुड़ चुकी है। वहाँ पर इश्यूज़ का डिस्कशन बहुत डिबेट ने उसको ले लिया है। तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म हो, और इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म जो ग्राउंड रियलिटीज़ को, ग्राउंड से मुद्दों को उठाकर और जनता से जुड़े, हमारे नागरिकों से जुड़े, उनकी बात करें, एक संवाद, जिसे कहते हैं संवाद, एक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी कोशिश रूट्स माटी माजरा में उस संवाद को, उस डायलॉग को क्रिएट करने की है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हमारा मीडिया का रोल क्या है? एक लार्जर रोल क्या है? ट्रेडिशनल रोल कहें या हम डिजिटल मीडिया में कहें या आगे भी कहें, कि ये रोल कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो रोल ये है कि एक मीडियम के तौर पर जब हम काम करते हैं, तो कनेक्टिविटी बिल्ड अप करना, जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी मेकिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो
किसके लिए काम करते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जनता के लिए काम करना। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि किसी भी देश को उसके नागरिक बनाते हैं, और सरकार का काम क्या है कि उन नागरिकों को सुविधाएं देना, उन नागरिकों को एक विकास के उस स्तर पर लाना जहां पर हर हमारे पास, जैसे कि राइट टू लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास हों, तभी हम अल्टीमेट ग्रोथ का जो हमारे पैरामीटर्स है उनको अचीव कर पाएंगे। तो उसमें जो मीडिया के रोल की बात होती है, तो हमारा रोल है कि हम जो नागरिकों की ओपिनियन क्रिएट करने में, सही ओपिनियन, किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी समस्या को लेकर ओपिनियन क्रिएट करने में जो मदद करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक वो भी रोल रहेगा कि आप अगर हमें कोई मुद्दा बताते हैं या हम किसी मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं, तो उसके दोनों पहलू क्या हैं, तो उससे एक ओपिनियन क्रिएट होगी, जिससे कि जो आप नागरिक हैं, वो नागरिक जब चुनाव में जाएं तो अपना सही निर्णय ले पाए। उनका वो निष्पक्ष निर्णय जो इस देश की डेमोक्रेसी को, देश के जो गवर्नेंस के मॉड्यूल को जो बनाता है, जो गवर्नमेंट को बनाता है, वहां पर सही निर्णय, सही वोट, जो सही ओपिनियन के साथ आएगा, वो इस देश को मजबूत करने में मदद मिलेगा। और देश मजबूत होगा तो डेफिनेटली हर नागरिक मजबूत होगा। शिवा, मिनी ने बहुत मुकम्मल बात कह दी है, सारी बातें समेट के उन्होंने बात कही है। एक चीज और है कि जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो जिस पर हम सब लोगों ने एग्री किया है कि इस देश में जो शब्दों का इस्तेमाल है वो एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, या एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए, या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाषा की मर्यादा और व्यवहार की मर्यादा का जो एक शालीन संस्कृति रही है हमारे भारत में पहले से, हम उसमें वापस जाएं और हम उन सारे शब्दों को जो मीडिया ने जो बैन लिस्ट के हिस्सा होते थे, लेकिन जिसको अब मीडिया ने अपनी डिबेट के जरिए कॉमन प्लेस कर दिया, और उस व्यवहार को, यहाँ तक कि मारपीट तक, उसको स्टूडियो के अंदर शोकेस कर दिया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम शब्दों का इस्तेमाल मरहम लगाने के लिए करें, समझ पैदा करने के लिए करें, और ये ध्यान रखें कि हम कितना भी विरोधी विचारधारा के व्यक्ति से बात करें, लेकिन कुछ वजह होगी जब वो उस तरह सोच रहे हैं, उनकी उस विचारधारा में भी अंदर जा करके उनको समझना, उनसे बात करना, अपनी बात समझाना, और हम दोनों मतलब सब तरह की विचारधाराओं के बीच में जो सिंथेसिस का रास्ता है वो कैसे हम हासिल करें, क्योंकि हमारे समाज को मरहम की बहुत ज़रूरत है। और मरहम से मेरी मुराद ये है कि सबसे पहले हम अपने भाषाई और व्यवहारिक संस्कार ठीक करें, जो कि बहुत बदसूरत होते गए हैं इस दौर में। एक खास तरह का खुलापन और उच्च श्रृंखलता, जिसे हिंदी में कहते हैं, ऑडेसिटी अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन गई है। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, और उसके जवाब में कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने कहा है तो अब हम क्यों चुप रहें। तो ये सारा जो भाषाई संस्कार बिगड़ गया है पत्रकारिता में, उसकी भी हमें बहुत ज्यादा चिंता है। हम लोग ख्याल रखेंगे। हम अपने दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कि आप जब कमेंट बॉक्स में भी आएंगे तो इस बात का लिहाज रखेंगे कि आप अपने ही जैसे एक इज्जतदार भारतीय नागरिक से बात कर रहे हैं, अपनी बात को समझाइए, ढंग से कहिए। वो सारे बुरे अल्फाज, घटिया बातें, ट्रोलिंग जो एक दूसरे के लिए करना बड़ा कॉमन हो गया है, और ऐसा लगता है कि अब उसके लिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। तो आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि बहुत खूबसूरती से जब भी कोई बात कहें, उसमें खूबसूरती का, ब्यूटी का पुट जरूर हो, कि हम भी अच्छे लगे, हमारी बात भी अच्छी लगे, और कितनी भी सख्त बात हो अगला उसमें इन्वॉल्व हो, इंगेज करे, और इसको ये ना लगे कि ये होपलेस सिचुएशन है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग टेलीविजन मीडियम को, न्यूज टेलीविजन को होपलेस मान के छोड़ चुके हैं। उनके घरों में स्क्रीन अब चलता ही नहीं है। तभी वो स्क्रीन ऑन होता है तो कुछ ओटीटी कंटेंट के लिए ऑन होता है, कुछ यूट्यूब के लिए ऑन होता है। तो ये जो निराशा एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग में आई है, उस निराशा को भी देखना है कि वो क्यों आई है, वो क्यों एंगेज नहीं करना चाहते अब इस समाज से, जो अपने भाषाई संस्कार, अपनी तहजीब, अपनी डिसेंसी भूल गया है। तो हम उसको भी वापस रखना चाहेंगे। दर्शकों से भी गुजारिश रहेगी, कभी आप हमें विचलित होते हुए देखें, हमें टोक दें, और अपना भी ध्यान रखें कि आप सब आपस में, हम सब की इज्जत है, हम सब इज्जतदार भारतीय नागरिक हैं, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है। जी, that's very important. Dignity of the human being
as a person, as a social dignity, all of it, we need to keep in a democracy. Democracy is all about, one person, one vote, because each one, irrespective of the caste and community, we are all one citizen of this great country, and we have only one vote, and that makes the power structure. So we will. मैं आपसे एक बस जुमला मैं कहना चाहती हूँ चेरियन साहब, दर्शकों से, कि इस विकासशील देश में सबकी जरूरत जो है वो सिर्फ 3 बुनियादी जरूरतें हैं। एक है बराबरी एक दूसरे के साथ, दूसरी है आजादी, सबको बराबर की आजादी, और तीसरी है न्याय, सबको बराबर का न्याय। और हम ये भाषा और व्यवहार से ही शुरू होता है कि जब हम ये मानते हैं कि हमारी आवाज औरों से ऊंची होगी, तो हम फिर उस बुनियादी सिद्धांत को हम तोड़ रहे हैं, जो इक्वालिटी और लिबर्टी और जस्टिस का सिद्धांत है। तो ना हमारी आवाज किसी से दबेगी, ना किसी से ऊंची होगी, ना हमारे शब्द किसी को चोट पहुंचाएंगे। तो ये बुनियादी व्यवहार हम अपने अंदर लाएं, तो यही डेमोक्रेसी की जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है। डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? कि सब बराबर से हो, सबके लिए एक समान व्यवस्था हो। तो वो हमारे भाषा और विचार से ही शुरू होती है ना, तो हम उसका ही लिहाज रखेंगे सबसे ज्यादा, सब बराबर है। That's great to hear, Shiva. And also, Shiva and Vinny talked about the digital platforms. What we are looking at is your smartphones. When you open the smartphone, you want the news update about what is happening around you. You want you to reach your smartphone. We don't, so it's a very highly personalized kind of communication which we are hoping, and we will keep your dignity, the social dignity, and as Shiva said, the freedom and your rights as an a citizen of the democratic country. We will take care of all these things while giving you the information which can make you think, which can make you take the right decisions about things around you. That's what we are hoping, and I'm sure that you will help us to get to reach our vision through your cooperation, through your participation, and I'm sure Binny has something to conclude. या मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क अपनी तरफ से देना चाहूंगी, वो ये कि हमें ये समझना है कि हमारे ऊपर भविष्य की जिम्मेदारी है और हम भविष्य की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो बस इतनी छोटी सी हमारी एक कोशिश है और ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमें हमारी ये है कोशिश कि सब इस चीज को समझें कि जो आने वाली नस्लें हैं वो हमारी तरफ देख रही हैं कि हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। तो बस यही कोशिश है, और आप हमें अपना प्यार दीजिए। Thank you very much, Vinny, Shiva. I hope we can work as a good team to actualize what we are promising to the viewers here. Thank you so much. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Namaskar.